नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हियर आई वांट टू टेल यू दैट हाउ कैन वी फॉर्मेट द pair of linear equations in two variables and how can we solve this question by graphically method. So try to understand for this question how can we formate the pair of linear equations in two variables and how can we find the solution from the graph paper, how can we take the scale. So dear, this is the very most important video for you and this is the most important questions also for you. So try to understand very well. So let us start without delay. So once again you can see here very carefully, this is the most important question for the examination of you. So let us start. Once more, let the width of rectangular garden equal to x and the length of the rectangular garden equal to y. According to the question says that the length of the rectangular garden is 4 more than its width. Means length equal to x plus 4. This is the width. तो एक बार फिर समझिए, यहाँ पे ये width थी, विड्थ कम थी, लेंथ ज़्यादा होती है कि नहीं? तो लेंथ ज़्यादा थी लेकिन हमने 4 कहाँ ऐड किया? विड्थ में, जो कम था। अब ये दोनों इक्वल हो गए, हमेशा कम वाले पार्ट में हम ऐड करेंगे। या फिर जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप बिना सोचे लिख देंगे। उसने कहा लेंथ, तो आपने लिखा लेंथ मीन्स वाई इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो आपने विड्थ लिखा और मोर का मतलब प्लस 4। अब आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम इधर 4 ऐड करें या इधर 4 ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि एक इक्वेशन बन गया, लेकिन आप इसको इसी फॉर्म में बना रहने दीजिए। अभी आप ट्रांसपोज कर सकते हो बट नो नीड, क्योंकि हम अभी ग्राफिकली इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसी को इसी फॉर्म में लिख देंगे। लेट अस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन थिंग्स इज गिवन हियर। सेकेंड, its width, okay, is 36 meter. Once again try to understand the perimeter of rectangular garden is 36 meter, ठीक है। So anybody tell what is the perimeter of rectangle? Length 2 into length plus breadth, correct। तो यहाँ पे again we will write here another thing again by according to the question, that is perimeter of rectangular garden equal to 36 meter and formula that is 2 into length means y and plus breadth means x. So this is 36, okay, no need to write here unit, बाद में लिखेंगे। इसके बाद समझिए आगे क्या करना है। ट्रांसपोज दिस, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। नो, आपको क्या करना है, इक्वेशन को या क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ट्रांसपोज दिस 2 टू राइट हैंड साइड, you will get it as x plus y. Can we write it? Y plus x means x plus y and equal to 36 by 2, 2 1 ja 2, 2 8 ja 18, 2 ja 36. Okay, now this is x plus y equal to 18. Okay, we can write this is the equation number 2, but I want to convert into this form. So we can write this as y equal to 18 minus x. Transpose this x to
right hand side. So this is the equation number 2. So two equations you will get here. After that you want to solve this by the graphical method. So you will write once again from equation 1 we get, क्या करेंगे, एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे. एक टेबल बना ली हम लोगों ने इस तरह से, और यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 1 और 2. इस तरह से 3 कॉलम बना लेंगे, आपका ग्राफ बहुत अच्छे से बन जाएगा. Now first of all you can see from equation number 1, this is the equation 1. You will put first of all 0 here. मैंने बताया था आप आसान क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ 0 पुट करना. जैसे ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 4, करेक्ट. तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4. नाउ यू विल पुट द नेगेटिव सेम वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ 4, तो आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट कर दो -4. When you put in the place of x -4, then -4 plus 4 0. Then you will get y equal to 0. And again you will take one more any value like that 2, 3, 4, 5, anything. So we want to put here 2 only. That is 2 plus 4 means you will put here 2. तो सबसे पहले आप यहाँ x की जगह 2 लिखो and 2 plus 4 means 6. So this table has been completed. Okay. Now you will write for next thing from equation number 2. Try to understand every students. Equation number 2 we get. फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट करेंगे. तो देखो ये टेबल हमने बना ली. First you will write here x and this one is y. Now observe the table number second. Okay, you will put here 0. In the place of 0 then you will get y equal to 18. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू 18 पुट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप कुछ छोटा वैल्यू लीजिए. क्या सर ले सकते हैं, यहाँ पे 10 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ ऐसा वैल्यू लो, हाफ लगभग हो जाएगा. तो चलो 10 लिखते हैं. x इक्वल टू 10, देन 18 माइनस 10 मीन्स 8, y इक्वल टू 8. इसके बाद देखो अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करने से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और उस केस में फिर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 18 से भी और ऊपर चला जाएगा. ठीक है. तो ग्राफ बड़ा बनेगा. तो हम इस बार नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट कर लेते हैं. तो यहाँ हम पॉजिटिव पुट करते हैं 8, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ हैं 2 के मल्टीपल ही है. तो हम यहाँ भी वैल्यू 2 के मल्टीपल में ही रखेंगे. यहाँ वैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वी आर फ्री. 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग. तो हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे. एट y इक्वल टू 8, सॉरी x इक्वल टू 8, देन 18 माइनस 8 मीन्स 10. तो देखो ये आपकी टेबल सेकंड भी कंप्लीट हो गई. ठीक है. अब हम ग्राफ बनाएंगे. तो देखिए ग्राफ किस तरह से, ग्राफ शीट ले ली हमने. ग्राफ शीट लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ 2 एक्सिस एंड इंडिकेट देयर. लिखना भी जरूरी है. बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्सिस तो खींच लेंगे, अब वहाँ यही नहीं लिखेंगे कौन सा एक्सिस x है और कौन सा एक्सिस y है. तो वहाँ पे सबसे पहला काम है कि आप एक्सिस ड्रॉ करके इंडिकेट करो कि एक्सिस कौन सा है, आपने कौन सा x कंसीडर किया है और कौन सा एक्सिस y कंसीडर किया है. तो चलो हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. लेट अस, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, and this one is the positive x direction, this one is the negative x direction, this one is the positive y direction and this one is the negative y direction. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. we will take the scale larger. we will write here table number 4 in the place of table number 2. आपने देखा यहाँ वैल्यू क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 18 है, वगैरह वगैरह है ना. तो हम अगर 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो बहुत स्पेस चाहिए.
2 का टेबल लिखेंगे तो 18 तक लिखना पड़ेगा, वो भी थोड़ा बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 4 मीटर। बोलो मीटर क्यों लिखा, बिकॉज यूनिट इज गिवन हियर इनटू द मीटर, 36 मीटर। तो हम लिखेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर, समझ रहे हो? जो ग्राफ पेपर में आपके स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, फिर इसके बाद डार्क लाइन है, तो उनके बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर्स है। तो आप लिखोगे यूनिट 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 4 मीटर। और हम यहाँ पे 4 का टेबल लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 20। सारी वैल्यूज आ गए। इसी तरह से यहाँ भी 4 8 12 16 एंड 20। आफ्टर दैट यहाँ पे -4 -8 -12 -16 and -20. After that this one is -4 -8 -12 -16. After that last one -18. ठीक है? So now we will present it. First one is 0 and 4. So 0 का मतलब है x एक्सिस को आप टच नहीं करेंगे, you will just go on the y axis and the value on the y axis is 4. He is talking. So now you can see that y equal to 4 means you will mark a dot on the y positive direction. Next one is x equal to -4 and y equal to 0. So no need to see here y axis. Only you observe where is -4 on the x axis. So this one is the -4 on the x axis. So this is the second point. And next one is just on x axis is 2 and y axis is +6. So you can see just middle of 0 to 4. ये क्या चीज है, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो 0 और 4 के बीच में 2 आएगा, यहाँ से आप ऊपर चलेंगे और y एक्सिस कितना है 6। तो आप देखो 4 और 8 के मिडल में 6 आएगा। तो यहाँ पे ये 6 है। आप देखिए मैंने इस तरह से आपकी वहाँ लाइन होगी ग्राफ में, और यहाँ पे 2 ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। स्केल लीजिए और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर। हाँ, आप देखो ये सेकंड थर्ड वाला पॉइंट ना क्या था, x पे कितना 2, तो 2 0 और 4 के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन होगी आपके ग्राफ पेपर में, डार्क लाइन होगी जो 5 स्मॉल स्क्वायर के बाद होती है। तो उस लाइन पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और इसी तरह से 4 और 8 के बीच में भी एक डार्क लाइन होगी, तो उस पर भी आप आगे बढ़ेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स प्लस पॉइंट जो भी होगा वहाँ पे आप इसे इंडिकेट करेंगे। तो इसे आप क्या रीड करेंगे 6, इसको क्या रीड करेंगे 4। क्लियर? तो आप तीनों पॉइंट को हमने स्केल लेके ज्वाइन कर दिया, जो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। आफ्टर दैट जस्ट मूव ऑन द टेबल नंबर 2. So here is value 0 and 18 means no need to go on x-axis because here is 0 and y-axis is only 18. That is positive direction. Y-axis this is 16 and this one is 20. तो 18 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो आप देखो यहाँ पे हमने ये पॉइंट दोनों के बीच में मार्क कर दिया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट 10 and 8। ध्यान से समझना, यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना बार बार। तो देखो x एक्सिस पे 10, तो 10 देखो कहाँ पे आएगा, 12 और 8 के बीच में यहाँ पे आएगा। तो इसके ऊपर हम चलेंगे, लेकिन जाना कहाँ तक है। आप देखो यहाँ y एक्सिस में क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो 8 तक हम सीधे चले जाएंगे। 8 कहाँ पर, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा वो हमारा पॉइंट होगा। ये दोनों के बीच में ये पॉइंट जो आएगा, तो ये चीज हम आपको समझाते हैं। आप चाहे कर भी सकते हैं, ग्राफ में भी कर सकते हैं,
बट नो नीड, जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर में यहाँ एक डार्क लाइन होगी, इधर से भी एक डार्क लाइन होगी। आप देखो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आमने सामने, वही आपका पॉइंट हो गया। अगला लास्ट पॉइंट है x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10। x इक्वल टू 8 दिस इज द पॉइंट एंड y इक्वल टू 10, तो इसके सामने चले जाइए जहाँ भी 10 मिले। तो 10 कहाँ मिलेगा? 12 और 8 के बीच में आपका ये लाइन आएगा इस तरह से यहाँ पे, और इधर क्या था 8 से ऊपर जाएंगे इस तरह से, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो 3 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 और ये तीसरा ये। स्केल लीजिए और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप चाहें तो इसका यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहते इसको चाहो तो थोड़ा एक्सटेंड कर लो, नो नीड, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो। अब आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? नाउ वी विल ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। तो देखो एक लाइन ये गई है, दूसरी लाइन ये, दिस इज द क्लियर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पेपर पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन था द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको किस तरह से हम ग्राफ पेपर पे करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें ये टेबल मिल चुका था और इक्वेशन 2 से हमें ये टेबल मिला है। तो चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। सो लेट अस सी ऑन द ग्राफ पेपर। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ग्राफ टेबल में हमें वैल्यू मिला है वो हाईएस्ट वैल्यू है 18, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 2 में, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 2। तो हम इस तरह से स्केलिंग लेंगे कि ग्राफ पेपर में ये हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि हम बोथ एक्सिस पर स्केल लेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स का मतलब है कि 10 स्मॉल स्क्वायर को हम 4 यूनिट कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक्सिस ड्रॉ करने के बाद फिर हम ये शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ एक्स एक्सिस, लेट अस दिस इज द एक्स एक्सिस। यू विल ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस जस्ट ऑन द डार्क ग्रीन लाइन। जिस तरह से आप देख रहे हो हमने एक डार्क ग्रीन लाइन सेलेक्ट कर लिया और उस पर ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट अगेन यू कैन सी दैट वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस भी हम डार्क लाइन पे ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो हमने ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एरो मार्क कर लेंगे, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ लिखना भी कंपलसरी है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने जैसा कि बताया 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू हम 4 यूनिट लेंगे। तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 4 यूनिट। तो ये आपका हो जाएगा, 4 का टेबल लिखना है, 4 8 12 और 16। ठीक है, इसके बाद में हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -4 -8 -12 और -16। इसके बाद फिर देखेंगे वाई एक्सिस पर हम यही चीज़ इंडिकेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 4 8, यहाँ पे आपका होगा 12, इस लाइन पे 16 हो जाएगा।
और नेगेटिव डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये आपका होगा -4, -8, -12 और -16। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ ले लिया। अब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल हम टेबल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। आप देखिएगा ये पॉइंट है 0, x एक्सिस पर 0 और y पर 4। तो x एक्सिस पर 0 है तो कुछ मतलब नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे। y एक्सिस पर 4 है तो यहाँ पे हम 4 इंडिकेट करेंगे। तो 4 आपका +4 ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है -x एक्सिस पर -4 और y 0 है तो 0 का मतलब नथिंग। y एक्सिस पर x एक्सिस पर -4 देखेंगे तो ये पॉइंट होगा -4। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है x एक्सिस पर 2, ये वाला पॉइंट देखेंगे, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 6। 2 का मतलब 0 और 4 के ठीक मिडिल में, और y एक्सिस पर 4 है और 6 है तो आप देखेंगे ये 8 और 4 के ठीक बीच में आएगा, मीन्स 5 स्मॉल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे होगा 5 स्मॉल स्क्वायर। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठीक सेंटर पे यहाँ भी y एक्सिस आएगा। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क करेंगे। रूलर लेंगे और रूलर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रूलर से हमने एक लाइन ड्रॉ करके इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। यहाँ पे आप एरो मार्क कर देंगे, दिस इज रनिंग अप टू इनफाइनाइटली। अब सेकेंड टेबल पे आएंगे। सेकेंड टेबल के लिए देखिएगा ये आपका x 0 है और y 18 +18 है। तो आप देखिए आपके पास ग्राफ पेपर में यहाँ पे 16 तक ही लिखा हुआ है। 18 का मतलब है आपका टॉप पॉइंट और आगे आएगा। तो इस पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में प्लॉट नहीं, अगर जगह कम है तो हम 2 पॉइंट ही प्लॉट करके इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 10 और 8। x एक्सिस पर 10 का मतलब है 8 और 12 के ठीक बीच में ये आपका आएगा 10, और y एक्सिस पर 8 आप देख ही रहे हैं ये पॉइंट आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया 10 और 8। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है 8 एंड 10, मीन्स x एक्सिस पर 8। तो x एक्सिस पर 8 ये है, ये पॉइंट रहेगा, और y एक्सिस पर 10, 12 और 8 के ठीक बीच में। मतलब इस तरह से आप ऊपर चलेंगे तो ये पॉइंट मिडिल में आएगा, वो आपका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो वही आपको इंडिकेट करना है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया 8 और, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से एक लॉन्ग लाइन यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइन को ज्वाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 18 ऊपर 18 को टच करेगा जाके, और इस तरह से आपको ये ग्राफ पेपर पे दोनों लाइंस मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें देखना पड़ता है। वेयर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस। सो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है ऐसा करने से। 2 लाइंस हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो देखिए ये हमने
हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी और इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी दो लाइंस मिल गई। तो देखिएगा यहाँ पे जो ग्राफ पेपर पे आप रीड करेंगे तो एक्स एक्सिस पर 8 से ये थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 8 से थोड़ा सा पीछे का मतलब है कि आप जब 5 पॉइंट लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 और यहाँ पे देखेंगे 8 और 4 के बीच में जो पॉइंट होगा वो 6 होगा, लेकिन ये 6 से भी आगे है। इट मीन्स एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू मिला है वो है 7। और वाई एक्सिस पर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पर अगर आप मिडिल पे आते हैं तो 8 और 12 का मिडिल पॉइंट 10 होगा और ये 10 से भी और आगे है। इसका मतलब y इक्वल टू आपको मिला 11। तो जो डायमेंशंस आपको ग्राफ पेपर से मिल गए हैं, दीज आर x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 11। मीन्स जो आपने कंसीडर किया था कि जो लेंथ है वो आपकी 11 यूनिट्स आ गई या मीटर आ गई और जो ब्रेथ है वो 7 मीटर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे मिल गया। आप लिख सकते हो लेंथ इक्वल टू 11 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 7 मीटर। और आप इसे चेक भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो 7 + 4 अगर आप करेंगे तो 11 मिल जाएगा। इसी तरह से इसका पेरीमीटर 36 है, तो आप देख सकते हैं 11 + 7 18 होगा और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे इंटू 2 आएगा तो 36 आ जाएगा। तो 36 ही आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो इट मीन्स योर आंसर इज़ वेरी करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको ये बताया ये द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मीन्स पेरीमीटर दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और भी है, उसे भी समझ लीजिएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो उस केस में यहाँ पे बाकी सेम चीज़ है, हुज लेंथ इज, तो यहाँ पे सेम ही चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो लेंथ ब्रेथ हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा y इक्वल टू x - 4 और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे x + y इक्वल टू 36 आएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये मिला था x + y इक्वल टू 18 मिला था, तो इस बार वो 36 मिलेगा। उस हिसाब से ये आपकी टेबल्स हो जाएंगे, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। और ये आपको ग्राफ पेपर आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है। यहाँ से सॉल्यूशन आप देखेंगे तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा। आप देख सकेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस पर पॉइंट मिला और y एक्सिस पर अगर आप देखिएगा तो y एक्सिस पर ये आपको लाइन मिलेगी। यहाँ पे x पर 12 और 20 के ठीक बीच में, मतलब 16, ठीक है। x का वैल्यू आपको मिलेगा 16 और y का वैल्यू आप देखिएगा ठीक एग्जैक्ट 20 पर है, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 20। तो ये उस केस में आपको ये आंसर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेंथ है वो 16 लेंथ है ये आपका हो जाएगा 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो आपका हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जिसमें हाफ पेरीमीटर लगा हो उसका आंसर ये हो जाएगा। सो आई थिंक दैट ऑल द doubts has been clear for this question about like that this question, so you can do very well. So this question just you will get in your textbook and above question you will get in the reference book, so you can draw
such type solution, you can give the such type solution of all the questions. So thank you so much.